کون ہے جو کہہ رہا ہے یہ ڈیٹ بدلے گی؟ جب ہم نے کہہ دیا تو ہو کر رہے گی. کیا ہاتھ کسی کا کٹا؟ کیا پھانسی ہوئی؟ کیا کسی زانی کو پتھر مارے؟ تم آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جی. پی ٹی آئی کی تو اس دفعہ سب سے زیادہ ہوئی ہیں. ہائی دیکھے نا، میں شیخ ہوں، میرے کو تو ایسی باتیں نہ کیا کرے. 24 جو ہے اس کا ہندسہ 8 بنتا ہے. 8 بہت خطرناک ہندسہ ہوتا ہے. عذاب ہجر بڑھا لوں اگر اجازت ہو، ایک اور زخم لگا لوں اگر اجازت ہو. السلام علیکم. این پی جی میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ لوگوں کے میزبان اقرا لیاقت. ناظرین اکرام، 2023 ختم ہوا، 2024 شروع ہو گیا. نئے سال پر نئی امیدیں، نئی خبریں، نئی امنگیں لے کر ہر کسی نے اپنے سال کا آغاز کیا. آج میرے ساتھ موجود ہیں سائیکک ریڈر اینڈ ٹیرو کارڈ ریڈر لالا رخ صاحبہ. آج ہم ان سے جانیں گے کہ 2024 کیسا رہے گا، کس کس کو کس محبت ملے گی، کون کنوارا رہ جائے گا. آئیے ان سے آج اس موضوع پر بات کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جانی مانی شخصیت لالا رخ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لالا کیسی ہیں؟ یہ سال تو ہجر سے شروع ہوا ہے. جان ایلیا کی یہ غزل بہت خوبصورت لگ رہی ہے. یہ ان کے نام جن کا نام آر سے شروع ہوتا ہے. عذاب ہجر بڑھا لوں اگر اجازت ہو، ایک اور زخم لگا لوں اگر اجازت ہو. تمہارے عارض و لب کی جدائی کے دن ہیں، میں جام منہ سے لگا لوں اگر اجازت ہو. تمہارا حسن، ویسے حسین تو وہ بالکل بھی نہیں تھا. تمہارا حسن تمہارے خیال کا چہرہ، شباہتوں میں چھپا لوں اگر اجازت ہو. تمہیں سے ہے میرے ہر خواب شوق کا رشتہ، ایک اور خواب کما لوں اگر اجازت ہو. اجازت ہے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اجازت نہیں دی اور ہم نے اپنے تمام خواب لپیٹ کر سمیٹ کر ایک ڈبے میں بند کر کے رکھ دیے. یہ سال 2024 جو ہے اس کا ہندسہ 8 بنتا ہے. 8 بہت خطرناک ہندسہ ہوتا ہے. نیومرالوجی میں بھی بہت خطرناک ہے، ڈیٹ آف برتھس میں بھی بہت خطرناک ہے. اور یہ سال بہت کم لوگوں کے لیے اچھا ہوگا. یہ سال اپنے ساتھ 8 فروری کی ہمارے ملک کے لیے الیکشن کی تاریخ بھی لے کر آیا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جنہوں نے یہ تاریخ دی تھی، کیا ان کو تاریخوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی؟ کیا ہمارے جج حضرات، الیکشن کمیشن پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ چلیں. لیکن میڈم آپ نے 8 تاریخ کی بات کر رہی ہیں تو 8 تاریخ کو الیکشن جو ہے کل سینٹ میں قرارداد منظور ہوئی ہے جس میں الیکشن ملتوی کرانے کی جو ہے وہ قرارداد پیش کی گئی جو کہ منظور بھی ہو گئی ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں، کل ہی میں نے تھوڑی دیر کو خبریں دیکھی کیونکہ یقین مانو اس سال دل نہیں چاہ رہا خبریں دیکھنے کو. مذاق لگ رہا ہے ہمارے پورے ملک کے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ ایک مذاق لگ رہا ہے. الیکشن کمیشن نے کہا کون ہے جو کہہ رہا ہے یہ ڈیٹ بدلے گی؟ جب ہم نے کہہ دیا تو ہو کر رہے گی. جیسے کہ جلاد نہیں ہوتا جب گردن کاٹنے سے پہلے جو کہتا ہے. مطلب فار گاڈ سیک، ہم ڈیموکریسی میں رہ رہے ہیں. سن 2024 ہے، پوری دنیا میں ہر ایک کو حق ہے اپنی رائے کی. اگر مولانا جو ہیں فضل الرحمان نے کہہ دیا کہ اگر تاریخ چند دن ادھر یا ادھر ہو جائے، انہوں نے کس مقصد سے کہا آپ کو مجھے نہیں پتا. ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کو کسی نے ہاتھ نہیں پکڑایا. ٹھیک ہے، تو وہ ذرا اپنی جانچ پڑتال کرتے ہیں کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ وننگ کلاس کے ساتھ ہوتے ہیں. چلتے، بہت پیاری بات کی آپ نے. چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، جیتی ہوئی پارٹی کے ساتھ ہیں. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہاری ہوئی پارٹی کا ساتھ دیں اور کوئی ان کے لیے بات کریں. کراچی میں اس وقت بہت زیادہ زور پکڑا ہوا ہے اسلامی جماعت اسلامی نے. مطلب وہ شہر جہاں میں 18 سال رہی ہوں، جہاں پر کہ میں نے نہیں دیکھا، پنجاب سے زیادہ ہے وہاں اسلام کی پرچار یا اسلام کی بات یا اسلام کی پیروی یا اسلام کو فالو کرنا، مگر اتنا زیادہ کوئی پولیٹیکلی اسلام کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ سب سے بڑی بات دیکھیں نا جو ہمیں سوچنی چاہیے وہ یہ ہے، جب آپ بھی باہوش اور سمجھدار لڑکی ہیں، آپ نے بھی ایجوکیشن حاصل کی ہے، میں بھی 65 سال کی ہو گئی ہوں، ہم نے کیا دیکھا کہ اس ملک میں کون سا اسلام آیا؟ کیا اسلام کی بات تو میڈم سارے کرتے ہیں. کیا شریعہ لا آیا؟ نہیں آیا.
क्या इस्लामिक लॉ आया? क्या हाथ किसी का कटा? क्या फांसी हुई? क्या किसी जानी को पत्थर मारे? नहीं आ रहे ना, मारे ना। तो ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको हमने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इस्लाम है इस्लाम? कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसमें कि आप अपने वज़रा को, अशरफा को बेतहाशा की खुली दौलतें देते हैं? क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 4 गाड़ियाँ थी, 8 नौकर थे, 2 महल थे, क्या था? 2024 में नवाज शरीफ, 2023 में पाकिस्तान है, 2024 में नवाज शरीफ का क्या मुस्तकबिल देखती हैं? जो मैंने पिछले साल प्रेडिक्शन की थी ना, वो देखें, पास प्रेडिक्शंस जो होती है ना, प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि हमने एक आगाही आपको दे दी। मौत तो बरहक है, ये तो नहीं ना कि नवाज शरीफ को नहीं आनी, और अगर लाला रुख ने कह दी कि 15 दिन में आ गई है तो उनको आ जाएगी मेरे कहने से। बरहक है, जब आने का टाइम होगा आ जाएगी। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, ना मुझे उनके सर पे कोई ताज नज़र आ रहा है, ना मुझे उनके नीचे कोई कुर्सी नज़र आ रही है। ठीक है, अपनी मट्टी पलीत करने आए हैं और अपनी इनकी बहुत ज़्यादा मट्टी पलीत होगी। इमरान खान का क्या होगा? इमरान खान देखें, वो तो इस कदर दिलेर हैं कि वो जेल में बैठ के भी कह रहा है कि आर्टिकल 6 लगाऊंगा, मैं सबको जानता हूँ, सबके चेहरे पहचानता हूँ। इतना मजबूत है, जेल में बैठे हुए शख्स से खौफ खा रहे हैं ये लोग। यही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। आप ये बताएं, कभी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में ये नहीं हुआ कि जेल के अंदर जज गए हों, जेल के अंदर अदालत लगी हो, जेल के अंदर फैसले हुए हों। अरे अगर आपको इतना डर है कि वो गाड़ी में बैठ के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पहली दफ़ा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में ये हुआ है। बहुत मज़े का था, परसों रात को मैं मेहर बुखारी को देख रही थी। मैं 1-2 एंकर्स हैं जिनको मैं पसंद करती हूँ या देखती हूँ। उसने एक कोई इंटीरियर से, आई डोंट नो कौन सी जगह का था, कोई छट्टा फट्टा राना पाना, कोई ऐसे अनपढ़ जाहिल जिसकी गुफ्तगू ही ऐसी थी, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, ये तो इनकी बोली है। उसने कहा कि जी ये आपको, ये पहली दफ़ा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में नहीं हुआ कि 400 दरख्वास्तों में से सिर्फ 3 मंजूर हुई हों और आपके 26 कैंडिडेट में से 24 की मंजूर हुई हो। तो आपको पता ही नहीं है जी, पीटीआई की तो इस दफ़ा सबसे ज़्यादा हुई हैं 280। पीटीआई की टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, 280 से उनके हो। उसने कहा, फिर से सुनिए, जो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, मुझे उसका 3 दफ़ा उस औरत ने सवाल किया, 3 दफ़ा उसने सवाल का साइड कर दिया। क्यों साइड कर दिया? जवाब ही नहीं है इनके पास। क्या जवाब है? क्या जवाज़ है? क्या जवाब है? बिलावल का क्या होगा? यार देखो, बस कितनी मज़े का लगा ना, मुझे ऐसे लगा नया कोई शो शुरू होने वाला है हमारे ड्रामों में ना, वो मैं बनूंगी वज़ीर आज़म। पहले तो ये बता देना मेरी जान, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी दिल का टोटा, कि बहनें हमारी भाई हैं। अच्छा, पहले क्लैरिफिकेशन चाहिए, देन आप बताएंगे। देखिए आप बताएं। मैंने ना कल रात को मुझे ऐसी मस्ती सूझी, ठीक है, मैंने ना कुछ वो डेटिंग साइट्स होती हैं ना, मैंने उस पे डाला, उस पे लिखा था मेल, फीमेल और एक्स जेंडर। तो जब ये जात अपना फॉर्म फिल करेंगे तो ये क्या लिखेंगे? मेल ही लिखेंगे। क्यों? बिलावल भुट्टो जरदारी नाम से हो जाता है। अच्छा, शेख साहब का क्या देखते? शेख साहब इज़ नॉट, देखो शेख साहब ने ना अपनी एक साथ रखी हुई है, ठीक है। शेख साहब ने कभी भी ऐसे करके बात नहीं की, हाय देखे ना मैं शेख हूँ, मेरे को तो ऐसी बातें ना किया करे। कभी तुमने शेख को ऐसे बात करते देखे? ही टॉक्स लाइक अ मैन, ही वॉक्स लाइक अ मैन, ही ड्रेसेस लाइक अ मैन। एंड अगर उसका कोई इस तरह की, मुझे तो नहीं लगता, आई एम अ साइकिक रीडर, मैं अंदर घुस जाती हूँ। सनम जावेद वर्सेस मरियम नवाज। ओह फॉर गॉड्स सेक, सनम जावेद अपने, अगर वो हारी भी ना तो उससे बड़ा जीत वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो एक नई बच्ची है, एक नई ताकत है, एक नया नाम है हमारे मुल्क में, और लोग उसको इसलिए पसंद करते हैं कि उसमें इतनी हिम्मत है कि वो मरियम के सामने आके खड़ी हुई। नवाज शरीफ वर्सेस यास्मीन राशिद। यास्मीन राशिद, एक्स हेल्थ मिनिस्टर। I know Yasmin Rashid. Nawaz Sharif for Prime Minister. नो सीटों में। हाँ, सीटों में। अच्छा, वहाँ से तो नवाज शरीफ जीत जाएगा जहाँ से यास्मीन राशिद है।
चाहत फतेह अली खान वर्सेस बिलावल भुट्टो। कौन? चाहत फतेह अली खान नया नाम है। ये वो वाला है जिसने कोई गाने गाए और फिर वो फेमस हुआ और फिर ये इलेक्शन में आ गया है। जी बिल्कुल। अच्छा तो अगर मैं आज इलेक्शन में के लिए, चलो अगले साल कर लेंगे अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो, अगर मैं इलेक्शन में खड़ी होना चाहूँ तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा मुझे बता दो। चलो सबको तो पता होगा, मैं तो बहुत अनपढ़ जाहिल औरत हूँ, पेशावर से आई हुई हूँ ना, पठान भी हूँ, नस्वार इधर देखो नस्वार भी डालती हूँ और थू भी फेंकती हूँ। बताओ चाहत अली ख़ान कैसे इलेक्शन में खड़ा हो गया? चाहत अली खान भी एक इंसान है ना, पर ओके मैं भी एक इंसान हूँ ना। तो देखे ना, इलेक्शन लड़ने का तो सबको हक है ना, कोई भी लड़ सकता है। अच्छा अब मुझे हक है, तो इलेक्शन अनाउंस हुए और मैंने कहा कि मैं खड़ी हूँगी, तो मैं भागी भागी पहले कहाँ जाऊँ? कौन से? कमीशन। इलेक्शन कमीशन जाऊँ? जाहिर सी बात है, आरओ के ऑफिस जाएंगे, वहाँ से कागजात लेंगी, फिर वो सबमिट तो करेंगी अपने। लाहौर में भी आरओ ऑफिसेज हैं? जी बिल्कुल। अच्छा अब तो बंद हो गया ना, अब तो ख़त्म हो गया होगा। अच्छा ठीक है, आरओ ऑफिस। वरना आपका भी इरादा था। अबे यार जब सब चाहत अली खान खड़ा हो सकता है तो लाला रुख क्यों नहीं खड़ी हो सकती? 2024 का लास्ट सवाल है, क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में? खिचड़ी हम्म, खिचड़ी पकेगी, ओके। रिजल्ट्स कुछ नहीं होंगे। हमेशा की तरह वो नहीं होते, 3 बच्चे खैर कर रहे होते हैं, यूं हाथ करते हैं, वो यूं तीनों का एक आता है, तीनों ने यूं किया होता है, फिर तीनों ने यूं किया होता है, फिर तीनों ने यूं किया होता है, फिर कहते हैं गेम ख़त्म करो यार। तो 2024 खत्म हो जाएगा। हाँ एक्चुअली बात ये ना, हमारे बड़े भाई जो है ना वो बड़े बेचैनी से इंतज़ार करें कि एक मौका और दे दे हमें भी आने का ना, तो वो कह देंगे आपके भाई का नाम क्या है? ARMY, RMY कौन है? जो वर्दी पहनता है। अच्छा। ये तो बड़ी बात कर दी आपने। तो वो कहेगा यार देखें ना, जब आप लोग डिसाइड ही नहीं कर सक रहे हैं ना, तो यूँ करते हैं कि कुछ अरसे के लिए हमें दे दें, हम थोड़ा सा ठीक ठाक करेंगे, सफाई सुथराई, एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस, डिसिप्लिन, ऑर्डर, फेथ, ह्यूमैनिटी, सारा हम ठीक कर देंगे ना, तो हम फिर इलेक्शन करवा देंगे। ओके जी नाज़रीन इकराम, लाला रुख बड़ी खूबसूरत और आज तो माशाल्लाह नए साल के साथ साथ बड़ी हॉट भी लग रही थी। इन्होंने कहा कि 2024 का जो साल है वो डामाडोल ही रहेगा, किसी के हाथ कुछ नहीं आने वाला। यहाँ पर जो बादशाह बनने के लिए, ताज पहनने के लिए तैयार हैं, वो बेताज रह जाएंगे और बादशाह कोई और बन जाएगा। अपनी मेज़बान इकरा लियाकत को दें इजाज़त, और मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा चैनल मैं किड़ी थोड़ी दुश्मन है यार, अल्लाह निगहबान।